everyone and welcome to our YouTube channel. Friends, as you all know, the ITR 3 utility for the assessment year 2020-21 is now available on the income tax portal for the purpose of filing. Now, in this ITR 3 utility, there are many changes that has been introduced from the assessment year 2020-21. So, क्या वो changes होंगे and how they are going to affect our returns, that all these things we are going to discuss in this video. Watch the full video to get the real understanding of these changes. बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे रेगुलर। तो चलिए शुरू करते हैं ITR 3 के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले हमारे को बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी जरूरी है कि ITR 3 किसको फाइल करना रहता है। तो ITR 3 जो भी इंडिविजुअल एंड HUF है जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है तो उसको ITR 3 फाइल करना रहता है, भले ही उसकी टैक्स वेट हो या ना हो। नाउ ITR 3 किस किस को एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ITR 3 जो भी इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर कंपनी जो ITR 6 फाइल करती हो, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म दैट इज LLP, AOP BI, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटीज़, जो भी अथॉरिटीज़ या पार्टनरशिप फर्म कंपनीज जो ITR 3 के अलावा ITR 5, 6 या 7 या ITR 1 या 2 जो भी इनकम अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन होंगे तो उनको ITR 3 फाइल करने की जरूरत नहीं की, ऑब्वियस सी बात है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ITR 3 की ड्यू डेट क्या है। फ्रेंड्स, जो अगर हम करंट असेसमेंट ईयर को कंसिडर ना करें तो जो अभी हमारी ड्यू डेट रहती है वो 31 जुलाई फॉर द नॉन ऑडिट केसेस एंड 30 सितंबर फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। नाउ बट फ्रॉम द असेसमेंट for the assessment year 2020-21, these dates are now been extended due to pandemic situation. Now the new date for the purpose of filing the return is, if you are non-tax audit cases, then you have the due date is 30th November 2020, and if you have the case of the tax audit, then you have to file your tax audit report by the 31st of October 2020. So this is the due date. Now the major changes that has been introduced in the ITR 3 utility is regarding the threshold limit. Friends, as you all know, the current threshold limit is rupees 1 crore. If your limit exceeds rupees 1, if your turnover or gross receipt exceeds rupees 1 crore, then you are eligible for the purpose of tax audit. Now, what does changes is, now the limit of rupees 1 crore has been proposed increased to rupees 5 crore with effect from assessment to ईयर 2020-21 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो भी आपकी थ्रेश होल्ड है 1 करोड़ उसको एक्सटेंड करके या फिर इंक्रीज करके रुपीज़ 5 करोड़ कर दिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। बट उसके लिए कंडीशन है। क्या वो कंडीशन है कि तो अगर आप टैक्स पेयर हैं जिसकी कैश रिसिप्ट आर लिमिटेड टू 5% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर, मतलब जो भी आप कैश में रिसिप्ट करते हैं उसका आपका 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर होने चाहिए। मतलब अगर कैश रिसिप्ट आपकी जो भी होती है वो आपकी टोटल रिसिप्ट या ग्रॉस रिसिप्ट उसकी 5% होनी चाहिए। आप 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट नहीं ले सकते। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर कैश पेमेंट आर आल्सो शुड बी लिमिटेड टू 5% ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट, मीन्स आपने एग्रीगेट पेमेंट जितने भी किए हैं उसके 5% ही कैश पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 5% से एक्सीड करते हैं देन ऑफकोर्स यू आर लाइबल फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ऑडिट। तो ये मेजर चेंज जो भी ITR 3 के अंदर यूटिलिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट अवर ITR रिटर्न। नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ITR 3 इज, there are the basic documents as per your requirement in the ITR 3, that is the Aadhaar card copy. If your salary income, then it is form 16. If you don't have the form 16, then the monthly salary slip, rent receipt in case of the income and rent agreement, bank statement for the purpose of the income from the interest on saving account, form 16A in case of the interest from fixed deposit. In case of capital gains, then profit and loss statement should be required. If you want to claim the chapter 6 investment details, then you have required the receipt of the children's tuition fees, life insurance receipts, stamp duty and registration charges, principal repayment in your home loan, equity linked savings scheme, mutual fund investments, mediclaim payment receipts, etc. Now the major changes that we have talked about is regarding the threshold limit. Now for this purpose the ITR 3 utility comprises of these changes. Now what you have to do in this return ITR 3, for the purpose of this threshold rupees 5 crore, the new checkbox has been introduced in the ITR 3 utility. Now suppose अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है देन यू आर कंपल्सरी लाइबल फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ऑडिट। बट अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है बट अप टू रुपीज़ 5 करोड़ है, और अगर आपकी कैश रिसिप्ट
एंड कैश पेमेंट वो भी आपकी 5% की लिमिट के अंदर फॉल होती है, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ऑडिट. But if any limit that is 5% of the cash receipt or 5% of the cash payment exceeds 5%, then you are compulsory liable for the purpose of the tax audit. Then you are not eligible for the benefit of threshold of rupees 5 crore. So this is the major change that has been introduced. Now if you अगर आपका 5% से एक्सीड कर जाता है कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट, तो आपको ITR 3 यूटिलिटी के अंदर एक चेकबॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको टिक मार्क करना रहेगा यस के ऊपर, और जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफकोर्स आपको टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं और आपको टैक्स ऑडिट करानी रहेगी फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाउ द नेक्स्ट मेजर चेंज दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द ITR 3 इज रिगार्डिंग द डिप्रिशिएशन. फ्रेंड्स, डिप्रिशिएशन रेट के अंदर आपको एडिशनल 15% डिप्रिशिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 विद रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल्स. फ्रेंड्स, जैसा आप सबको मालूम है कि जो भी डिमांड है मोटर व्हीकल्स की वो रिड्यूस हो चुकी थी ड्यूरिंग द ईयर. सो गवर्नमेंट ने उसको बूस्ट करने के लिए कुछ एडिशनल डिप्रिशिएशन प्रोवाइड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटर व्हीकल्स परचेज हो सके. अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज किया है 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020 एंड पुट टू यूज़ ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एडिशनल डिप्रिशिएशन ऑफ 15%. Now these new depreciation rates were notified by the CBDT via notification number 69/2019 dated 20 September 2019 with retrospective effect from the 23rd of August 2019. As per new appendix 1, the rates of depreciation on motor vehicle shall be as under. तो क्या न्यू रेट्स हैं मोटर व्हीकल्स की हम डिस्कस करेंगे. अगर आप कोई भी मोटर कार यूज़ करते हैं अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो आपकी रेट 15% रहेगी. बट सेम मोटर व्हीकल आपने अगर 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने खरीदा है और 31 मार्च 2020 के तक अपने पुट टू यूज़ कर दिया है, तो आपको एडिशनल 15% डिप्रिशिएशन मिलेगा प्लस 15, मतलब जो भी आपको ओरिजिनल 15% था प्लस 15%, मतलब टोटल 30% का आपको डिप्रिशिएशन मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर. तो जो भी मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज जो भी आप बिजनेस में यूज़ करते हैं रनिंग देम ऑन हायर, तो आपकी 30% रेट रहेगी. बट द सेम अगर आपने 23 अगस्त 2019 टू 23 मार्च 2020 तक परचेज किया है तो आपको एडिशनल 15% का डिप्रिशिएशन मिलेगा. अगर आपने 31 मार्च 2020 तक पुट टू यूज़ कर दिया है तो आपकी टोटल रेट हो जाएगी 45%. सो फ्रेंड्स, इस डिप्रिशिएशन रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है 45% रेट को, जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग ITRs के अंदर नहीं होती, तो ये ITR 3 न्यू यूटिलिटी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. सो ये दो मेजर चेंजेस थे जो अभी ITR 3 यूटिलिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. आई होप आप ये दोनों चेंजेस को आप आपके ITR 3 फाइल करते टाइम याद में रखेंगे ताकि आपको ITR 3 करेक्ट फाइल कर पाएँ. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो इसको लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें. सो थैंक यू.